This backup for conference will now be recorded. The most important thing to make sure with your backup is to make sure that you have a storage account first, so you can back up your website. exactly, because you need to know about, you need to monitor your storage devices or storage files. It required at least one storage account, and under the storage account you should create at least one container. The container responsible to put your backup files of our application services. Is it correct? Yes, yes, that's right. So Yes. as the administrator, our responsibility, we are not responsible to manage the designing of any website or application, but we are responsible to take care of the backend thing related to the application services or web services. डिजाइनिंग में हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन वी डोंट नो अबाउट द डिजाइनिंग पार्ट, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डेवलपर या डिजाइनर टीम की रहेगी, बट उस पूरे इन्वायरमेंट को टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बैकअप सिक्योरिटी एसएसएल टीएलएस या कस्टम डोमेन हमें जो ऐड करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर? Yes, sir. डाउन टाइम क्या है, अगर कस्टमर या क्लाइंट बोलता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डाउन है, तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेवलपर टीम की, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डेवलपर क्या कहेगा कि अगर आपको कलर कोई चेंज करना है, अगर आपको कोई थीम चेंज करनी है, आपके जो कंटेंट है वेबसाइट को उसको बदलना है, देन यू कैन कोऑर्डिनेट टू मी। Related to the speed or security, you should coordinate to the administrator team. Is it correct now? Correct. Fine. So in case of WordPress services, as we discussed, it's a part of CMS, content management system, जिसमें एक provider को हमें select करना पड़ता है, and provider responsible to provide you platform. With the help of platforms, we are able to design our website without using any language or code by using just a simple, you can say that, uh, uh, you can say that plugins. It's considered as a plugins और n number of plugins, like as आपको पेमेंट गेटवे लगाना है plugins लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको अदर सर्विसेज ऐड करनी है plugins लगा देंगे, तो उसके साथ बहुत सारी सर्विसेज है, थीम चेंज करना है plugin। Got it. इज इट क्लियर ना? चलो ठीक है, वो Yes, sir. तो सीएमएस बेस्ड हो गया। तो इसमें हम फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं कि अगर किसी को अपनी वेबसाइट माइग्रेट करानी है या अगर अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करानी है, तो हम अपने क्लाइंट को ऑफर दे सकते हैं कि यू कैन प्रोसीड विद एडब्ल्यूएस और एज्योर और एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर, जो हमारे पास अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, सबका मेथड सबका सेम रहता है, क्योंकि जो लास्ट वाला प्रोसीजर हमने यूज किया था ना, ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, ये सभी फॉलो करते हैं, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर फॉलो करता है। But now we are responsible to manage the app services. In case of app services, we are planning to host the website, code based website. ठीक है, in case of code based website, I have already downloaded one PHP file, one .NET file, not PHP। ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक वेबसाइट का नाम के नेम से फोल्डर तैयार कर रखा है, और इस फोल्डर के अंदर आई एम गोइंग टू चेक द कंटेंट। सो यू नीड टू ओपन index.html। so index.html is a main page, master page, जिसको क्लिक करने पर जितने भी कंटेंट है वो आपको एज ए वेबसाइट हमें दिखने लगेंगे, लाइक दिस इज द .NET बेस्ड वेबसाइट विच इज आई डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल। एक तरीके से डमी है। क्लियर? सो आर एजेंडा टू एक्सेस द सेम वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड। वो कैसे होगा? जब आप इसको अपने ऐप सर्विसेज से अटैच करेंगे, और ऐप सर्विस पे अटैच करने के बाद इफ यू वांट टू एक्सेस इट विद योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आप इसको अपने कस्टम डोमेन से अटैच कर देंगे। क्लियर? Got it, sir. Need to open our Azure portal and proceed to create a web platform. Is a type of platform as a services. So we need to create a one platform, and according to the options which is available in our Azure services, Azure app services, हम इसको proceed करने वाले हैं। So now we have all resources, all services, and we just need to click on the uh, Azure app services, web services पे click करेंगे। This is the web services. Click here. वेब के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट जो है ना वो आपके डेवलपर के हैं, कुछ कंटेंट आपके सिक्योरिटी के हैं, कुछ कंटेंट आपके AG303 के हैं। तो जो AG104 के अंदर चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक एज पहला हमारा है ऐप सर्विसेज, इसमें डिस्कस करेंगे। ऐप सर्विसेज इज अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म दैट help us to host our website, create a app service,
provide the basic information like you know very well about. Resource group हमें चाहिए Azure AG 104. Type the unique name for your application services like Azure Class Web App 1988. Must be unique क्योंकि ये डोमेन की तरह काम करता है. तो अगर इसमें कोई चेंजेस हुआ तो ये बाद में जाके रिजेक्ट कर देगा, ये क्रिएट नहीं होने देगा. 1998 00. We are able to find 3 different options are available in this particular panel. So as per the name suggests, यहाँ पे तीनों clear तरीके से mention किए गए हैं कि you want to publish your website with the help of code or Docker container or static website. So what do you think about the static website? Any idea about the static website? Static website will probably be the fixed website. Static means something that is fixed, and that is run through web. This is just an estimate. I'm not sure if this is the right answer though. Correct. As per the name suggests, if we talk about the static कि आपको एक पेज बना के दे दिया गया है and उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है पेज पे, इमेजेस दे दी गई हैं, कुछ कंटेंट उसमें राइट कर दिए गए हैं which is unchangeable. जब तक डेवलपर नहीं चेंज करेगा वो चेंज नहीं होगा. सेकंड, आप एक वर्ड में बोल सकते हैं द स्टैटिक वेबसाइट विच इज रिलेटेड टू द वेबसाइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी डेटाबेस or it may be built-in database or external database. ऐसी वेबसाइट जिसका किसी भी डेटाबेस के साथ कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन नहीं है वो हमारा स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी. इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो आज की डेट में ज्यादातर छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप मान के चलिए 85% जो वेबसाइट रहती है वो डायनेमिक रहेगी. बिकॉज कहीं ना कहीं आप नॉर्मल भी वेबसाइट की बात करें, मतलब एक छोटे से बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए भी अगर बंदा वेबसाइट बना रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सर्च पैनल देगा, कहीं ना कहीं फॉर्म का ऑप्शन देगा. अगर ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, सर्च का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, लॉगिन पेज का ऑप्शन दिखाई पड़ता है वेबसाइट के ऊपर, या कोई फॉर्म का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इट मींस दैट द वेबसाइट विच इज एसोसिएटेड विद at least built-in database and your website is dynamic. बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं, which is hosted with the help of what we can say that GoDaddy.com पे ये मैंने होस्ट कर रखी. पहले Azure पे थी ये, Azure पे थोड़ा सा इसमें कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा आ रही थी एज पर द रिस्पॉन्स, मतलब बिजनेस से ज्यादा हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी. तो आई जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम Azure to GoDaddy.com. दिस इज द डायनेमिक वेबसाइट. और इसके टेस्टिंग का पर्पज क्या है कि जैसे यहाँ पे है ना ग्रैब या डेमो, ये जो फॉर्म है ये हमारे बैकएंड के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है. सो ये जो फॉर्म की इंफॉर्मेशन, ये जो कंटेंट की इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली क्या है कि ये शो करता है कि दिस इज द डायनेमिक वेबसाइट. अगर यहाँ पे सिर्फ पेज होता है, ये पेज बना के छोड़ देते हैं, तो इट मीन्स दैट दिस इज फॉर द स्टैटिक वेबसाइट. क्लियर? Got it. Yes. Another important option is code and docker container. तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉकर, क्योंकि कोड के बारे में हमें पता है पहले से अबाउट द डॉकर. सो डॉकर अभी आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही जल्द, पिछले 5 से 6 साल की बात करें, बैक की बात करें, 8 साल की बात करें, तो जो कंप्यूटर का इरा है ना वो मोस्टली ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है. Got it. ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है. अब देखो कितनी सारी नई वेबसाइट जो है आई, नए प्लेटफॉर्म आए. गिटहब का नाम सुना होगा आपने, Yes, sir. बिटबकेट है, वन ड्राइव है, आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, राइट. तो एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास मिले हैं. तो गिटहब की बात कर लेते हैं. गिटहब क्या है? एक पब्लिश प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है. अगर आप डेवलपर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपनी वेबसाइट, अपना कोड, अपना एप्लीकेशन, अपना गेम सिक्योर तरीके से क्लाउड पे रख सकते हो. क्लियर? थिंक Yes, लाइक sir. एज अ डेवलपर. मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं, आपको जावा और पाइथन की अच्छी नॉलेज है. यू आर एबल टू डिजाइन एप्लीकेशन और वेबसाइट. आपको मच आइडिया अबाउट टू डिजाइन द एप्लीकेशन और वेबसाइट, और आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई.
तो पहले क्या था, अगर हम ट्रेडिशनल थिंग की बात करें तो पहले क्या था, अगर आपने वेबसाइट बनाई है और किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो यू मस्ट नीड टू कैरी, पेन ड्राइव में रखो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, कहीं आपको सेमिनार करने जाना है, वर्कशॉप देने जाना है, तो यू मस्ट नीड टू कैरी योर वेबसाइट इन पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। इज इट करेक्ट? यस सर। अगर वो मिस हो गई तो हमारा पूरा सेमिनार या पूरा वर्कशॉप जो है मिस करना पड़ सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ कंटेंट। अब गिटहब क्या करता है, कंटेनर क्या करता है, डॉकर कंटेनर या गिटहब क्या करते हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। नो नीड टू कैरी योर नो नीड टू कैरी योर मटेरियल और वेबसाइट इन पेन ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव। आपने अकाउंट बनाया, आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो जाएगी, और आप अपना साइन अप करो, साइन अप करने के बाद जो भी डेटा रखना है वो आप डेटा रखो, वेबसाइट रखो, एडिटिंग करो, कुछ भी करो, और कहीं से भी 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ क्लाउड। तो डॉकर इतना पॉपुलर, डॉकर कंटेनर इतना पॉपुलर आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है या सर्विस है, जिसका आज की डेट में हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उस पे आप उस सर्विस को ना, आप उस सर्विस को मीन्स अगर आप एज ए डेवलपर हो तो आपको यूज करनी चाहिए। क्लियर? गॉट इट। यस सर। तो डॉकर क्या है, डॉकर के बारे में भी बात करेंगे। डॉकर कंटेनर इज अ प्लेस जहां पे आप अपने सर्विसेज को रखते हैं। चलो ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैब्लिश द कोड। अब आपने कोड पे स्टैब्लिश किया, क्योंकि हमने पहले से प्लान कर रखा है कि वी हैव आवर ऑन वेबसाइट, हम इसी वेबसाइट को प्लान कर रहे हैं होस्ट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट नीड टू सेलेक्ट द यू कैन से दैट नीड टू सेलेक्ट द टाइप लैंग्वेज। ऑफ। तो हमारे केस में, अपने केस में क्या है, डॉट नेट है, एंड अगेन विंडोज एंड लिनक्स विच इज अ बैकएंड सिक्योरिटी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिनक्स पे प्रोसीड करते हैं या विंडोज पे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद विंडोज, एंड दिस इज अवर यूएस, सेंट्रल यूएस, एंड यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द प्लान। तो चेंज प्लान पे क्लिक करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो इंटरव्यू में है ना, एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा मिलेगा एजूर एजी 104 में। एक तो मैंडेटरी है, तीन 1 से 3 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप इनमें से आप 2 बारी 3 बारी इनको इम्प्लीमेंट करके देख लेना, क्योंकि ये आपको कम से कम 25 से 30 नंबर दिलाने वाले हैं। जो केवल इसकी बात करें ऐप सर्विसेज में, 25 से 30 नंबर तो आपके फिक्स हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो सकता है, एक क्वेश्चन 8 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन 20 से 25 नंबर तो आपको मिलने मिलने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 3 तरीके के प्लान्स हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, आइसोलेटेड है, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें चीजें ज्यादा सर्विसेज समझनी है, तो S1 प्लान बेटर रहेगा 3100, क्योंकि आप देखिए SL डोमेन और SSL दोनों का ऑप्शन है। ऑटो स्केलिंग में 10 इंस्टेंसेस मिलते हैं आपको बैकएंड। व्हाट यू थिंक अबाउट द ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केल मीनिंग जब हमने वो स्केलिंग सेट्स पढ़ा था ना सर, जैसे इंस्टेंसेस बढ़ा दिए, इंस्टेंसेस कम कर दिए, डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द लोड और डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू यूजेज। ओके ओके। तो ये जो जिस क्लस्टर में आपने ये प्लान सेलेक्ट किया ना, जिस भी क्लस्टर में ये रखा गया है, उस क्लस्टर में आपको 10 इंस्टेंसेस दिए जा रहे हैं स्केल, ऑटो स्केलिंग के लिए, जिसमें अप टू 10 इंस्टेंसेस आपको बैकएंड में मिले। राइट। ठीक है। एंड अनदर ऑप्शन इज स्टेजिंग स्लॉट। व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेजिंग स्लॉट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट? Staging slots, you can say, as it is more like a sandbox, where you can test your applications before you deploy them. It's more like a testing environment. Testing environment. Okay. कैन वी से दैट कि जो आपने प्लान परचेज किया है 3100 समथिंग के आसपास, अगर आपको फील आता है कि नहीं, आपकी वेबसाइट जो है ना इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, गॉट इट, आपको जो हिट मिल रहे हैं, आपकी जो वेबसाइट पे यूजर्स विजिट कर रहे हैं बहुत ही कम है, मीन्स पूरे मंथ को अगर हम कैलकुलेट करें तो यू आर गेटिंग जस्ट 300 or 400 यूजर्स इन इंटायर मंथ। 300 or 400 clients are visiting in your website,
in entire month. So why you need to pay, ठीक है, much amount. तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें, इस केस में क्या करना चाहिए, स्टेजिंग ऑप्शन हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करो ना, फिर 100% ट्रैफिक डाइवर्ट करने की जगह पे आप 50% ट्रैफिक जो है डिवाइड कर दो। क्लियर, 2 वेबसाइट होस्ट करो बहुत एक ही पे, और 50-50% जो है डिवाइड कर दीजिए। जिससे क्या होगा, एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट होगा। अगर आपको 3000 पे भी करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये क्लियर रहेगा कि हमने 3000 दे करके 3 वेबसाइट या 4 वेबसाइट पोस्ट कर रखी है, तो उतना ज्यादा हमें दिक्कत भी नहीं होगी पेमेंट देने में। इज इट करेक्ट? यस सर। I'll show you how we can create a staging. I think we have already discussed about it. Daily backup 10 times. ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है ना, तो और ई कॉमर्स वेबसाइट के केस में काफी पॉपुलर वेबसाइट है आपकी, नंबर ऑफ हिट्स यू आर गेटिंग ऑन डेली बेसिस। कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासे विजिटर आ रहे हैं, अच्छे खासे यूजर्स आ रहे हैं। तो उस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए सभी चीजों का बैकअप बना के रखें। तो 10 टाइम इज इनफ, मीन्स अगर अपने पास डेली बेसिस पे 10,000 भी हिट आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 10 टाइम बैकअप इनफ है 24 आवर्स में। ट्रैफिक मैनेजर आगे हम पढ़ेंगे। ट्रैफिक मैनेजर, लेट मी चेक कि ये हमारे AG104 का पार्ट हो। ट्रैफिक मैनेजर एक ऐसी सर्विस है विच इज परफॉर्म द टास्क लाइक एज अ लोड बैलेंसर। और इस लोड बैलेंसर की खासियत ये है कि अगर आपका एक वेब सर्वर यूएस में और दूसरा इंडिया लोकेशन में है ना, तब भी आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअली यूज ऑफ ट्रैफिक मैनेजर। इज इट क्लियर? यस सर। Cool. So another option ACU, Azure Compute Unit, इनका खुद का टर्म्स है कि ये जो बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उनको ये कंप्यूट यूनिट बोलते हैं। आप बोल सकते हैं होस्ट। एंड मेमोरी एंड अबाउट द स्टोरेज। तो टोटल जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, जो बिल्ट इन डीबी है या आपके डेटा अपलोड करने की जो कैपेसिटी है, वो 50 GB तक की हार्ड डिस्क आप इस पे यूज कर सकते हैं। So this is the plan. So I'm going to proceed with the S1 plan. According to the plan, ये चीजें बदलती जाएंगी। नंबर ऑफ इंस्टेंस, नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ बैकअप, है ना, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती जाएंगी। तो टेस्टिंग पर्पज के लिए S1 प्लान सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं। नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे, नो नीड टू डू एनीथिंग। मॉनिटरिंग अपने आप हम, जब सर्विसेज हमारी ऑन हो जाएगी तो इसको मॉनिटरिंग देख लेंगे। रिव्यू एंड क्रिएट। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। Okay. चलिए, अपना जो प्लेटफॉर्म है ना, मीन्स जो हमने डिसाइड किया था प्लेटफॉर्म, वो रेडी है। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन प्रोवाइड द डेटा। सो एक्चुअली क्या है ना, एज्योर पोर्टल, नॉट ओनली द एज्योर पोर्टल, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो हमें मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। कोड बेस्ड वेबसाइट में हमने क्या किया, वी क्रिएटेड अ वन ऐप सर्विसेज।
So in Azure App Services, it will provide you a platform जिसमें हमने पैकेज डिसाइड किया था कि हाँ ठीक है हम ये पैकेज उठाना चाहते हैं. And now we need to upload the data. Provide web or app data. वेबसाइट या एप्लीकेशन डेटा को हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो वी हैव बट वेरियस वे. एक जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है लाइक एज गिटहब, बिटबकेट, आई थिंक वन ड्राइव ही मिलेगा हमें. लेट मी चेक. माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. एंड एज़्योर रिपोजिटरी, एज़्योर रिपोजिटरी. सो दीज ऑल आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके लिए आपको अपना डेटा पहले से अपलोड करके रखना पड़ेगा. बट अपने केस में थोड़ा सा हिसाब अलग है बिकॉज वी आर यूजिंग ऑन प्रोमाइसेस. हमारे पास जो डेटा है हमारा ना वो ऑन प्रोमाइसेस है. तो ऑन प्रोमाइसेस के लिए ये हमें ऑप्शन देगा किसका, FTP का. If you put your data on on premises, so what you need to do, this is our on premises laptop जहाँ पे हमने अपना वेब डेटा एस्टैब्लिश कर रखा है. So what we need to do, we need to use the file transfer protocol. ये हमें ऑप्शन देगा कि आप FTP कॉन्फ़िगर करो और FTP के थ्रू अपना डेटा अपलोड कर दो. You can say that this is considered as a CI/CD pipeline. इसी को बोला जाता है CI/CD pipeline. और ये हमारा क्या होता है, ऑन प्रीमाइसेस लोकल डेटा सेटअप. इज इट फाइन? Yes, sir. Fine. So what we need to do, we need to upload our data, but before that you need to configure the FTP, because you know that in case of FTP you need to provide the username and password. FTP का जो भी username password है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. बैक टू द एज़्योर पोर्टल, क्योंकि FTP की इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिलने वाली है एज़्योर पोर्टल से. सो नीड टू ओपन आवर ऐप सर्विसेज क्लाउड क्लास वेब ऐप 198800. दिस इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन सर्विसेज जो भी हमने एस्टैब्लिश कर रखी है. एंड नाउ n number of options are available. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. लेट मी वेरीफाई कि हमारा जो वेब सर्विस हमने एस्टैब्लिश की है it is working properly or not. So we just need to copy and paste. Your web app is running and waiting for your content. क्योंकि अपना जो सेटअप बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है. बस कमी है तो you just need to upload your own data. आप अपना डेटा अपलोड कर दीजिए. I'll share the I'll help to execute or host your data to worldwide. So this is everything is fine. Platform is running properly. What you need to do, you just need to click on deployment. Under the deployment part, we are able to find deployment slots and deployment center. Deployment slots can help you कि आपको कितनी नंबर ऑफ वेबसाइट होस्ट करनी है वो आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में देखेंगे. नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट सेंटर क्या कहता है, डिप्लॉयमेंट सेंटर ये कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर डेटा कैसे अपलोड करते हैं. So I'm just going to click on deployment center, or under the deployment center we are able to find multiple options. सेटिंग है, लॉग सेट, FTP/PS, credential है. तो सेटिंग में पहला ऑप्शन सोर्स दिखाई पड़ रहा है. नीड टू क्लिक हियर एंड वी आर एबल टू फाइंड बिटबकेट, गिटहब, CI/CD पाइपलाइन के अंदर लोकल गिट, एक्सटर्नल गिट, वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है. ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट है. तो these all are the options that you can use to upload your website or application services. But अपने केस में थोड़ा सा हिसाब अलग है. You need to select FTP और this is the place जहाँ पे आप FTP का credential डिसाइड करेंगे. यूजर नेम क्लास वेब नाम से ही उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं. क्लास वेब ये हमारा यूजर डिफॉल्ट नेम हो गया. हाँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है थोड़ा सा यूनिक देना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा. लेट मी चेक. और इस पेज को सेव करना है हमें. अपडेटिंग, वेट करते हैं थोड़ी देर.
चलो अपडेटिंग पब्लिश यूजर क्रेडेंशियल, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मीन्स आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड डिसाइड किया ना वो काम कर रहा है, मीन्स यू आर एबल टू एक्सेस योर सर्विसेज, यू आर एबल टू एक्सेस योर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, ओपन गूगल अपने बेस मशीन पे, और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड फाइलजिला क्लाइंट, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है फाइलजिला क्लाइंट, डाउनलोड फाइलजिला फॉर क्लाइंट एंड डाउनलोड। चलो यहाँ पे हमने डाउनलोड करके ओपन करा दिया, एंड इंस्टॉल। फाइलजिला को डबल क्लिक करते हैं, ओपन एंड वेट। This is the page of our FileZilla. This is the look of our FileZilla, you can say that, and our responsibility to connect with our Azure services. Okay. So Azure के केस में हमें क्या करना है? We just need to, we have already configured the FTP information, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी FTP credential का इस्तेमाल करेंगे। Overview पे क्लिक करेंगे and it give you the option of FTP. This is the username, this is host name, password आपको पता है। Copy the host name first, back to the on premises क्योंकि पहला नंबर होस्ट नेम है, पेस्ट कर दो, बैक, सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट यूजर नेम, कॉपी करते हैं, यूजर नेम पे पेस्ट कर देते हैं, पासवर्ड जो भी आपने दिया हो, और पोर्ट नंबर 21, करेक्ट। Yes. Let's try to connect, quick connect। We successfully connect, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग फाइल को करना है डिलीट। एम्प्टी, we don't have any drive, एंड लेफ्ट पैनल पे आप देखो तो यूजर प्लस यूजर नेम प्लस डेस्कटॉप प्लस वेबसाइट सेम ही डॉक्यूमेंट में है, सेम ही पाथ पे है हम लोग, तो ये जो डेटा है ना ये हमारी वेबसाइट है। आप कंट्रोल ए करेंगे यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, सिंपल सा, और थोड़ा सा इंतजार करें।
तो एज वी नो दैट जो वेबसाइट भी होती है ना, तो वेबसाइट कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा जीबी में होगी, 2 जीबी या 3 जीबी, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो, राइट। बहुत ही ज्यादा राइट। आपने ग्राफिक अच्छा यूज किया है, या आपने छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स अपलोड किए लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे करती हैं, तो उस केस में हार्डली 2 या 3 जीबी के आसपास होगा, तो इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes to complete the copy the entire data from your on-premises machine to Azure portal. Is it correct? यस सर। तो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी इस यूआरएल को एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है, जो नया डेटा आपने अपलोड किया है ना, वो नया डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए थ्रू वेबसाइट, थ्रू वेबसाइट। कॉपी द यूआरएल अगेन, और उसको आप किसी ब्राउजर पे पेस्ट करिए। हमें वही डेटा मिलना चाहिए जो ऑन प्रेमाइसेस पे हमने अपलोड किया था, ऑन प्रेमाइसेस के थ्रू जो हमने अपलोड किया था। इज इट क्लियर? यस सर। सो वी आर गेटिंग द सेम डेटा। अभी आप यहाँ पे देखो ना, तो हमने यहाँ पे सेम डेटा यहाँ पे एक्सेस किया है। डन। यस सर, गॉट इट। तो हमें क्या करना है, अपनी डेवलपर टीम से सिर्फ इतना बोलना है कि भाई आप अपना डेटा ना पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में या गूगल ड्राइव में कहीं से भी भेज दो, बाकी की चीजें हम मैनेज कर लेंगे, बस आपका डेटा जो है रनिंग में होना चाहिए और HTML .NET PHP जावा पाइथन में लिखा होना चाहिए। लोकल जब हम ट्राई करें एक्सेस करने की आपकी वेबसाइट, तो ओपन होनी चाहिए, that's it. राइट, गॉट इट, गॉट इट। चलो, स्टेजिंग के बारे में हमने बात की थी, विच इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स। एक स्लॉट्स है, 100% ट्रैफिक जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये जो स्लॉट्स है इसको, या जो ये what you can say that, ये प्लान है हमारे लिए कॉस्टली पड़ रहा है, तो यू आर प्लानिंग टू होस्ट अनदर वेबसाइट। बहुत ही बेसिक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे, स्लॉट्स का नाम प्रोवाइड करेंगे, कोई सा भी नाम, और ये आपको अदर पेज प्रोवाइड कर देगा, Azure App 1988, Azure App 1988 डू नॉट क्लोन सेटिंग। हम जो सेटिंग्स हमने पहले क्रिएट कर रखी है, उसका कोई क्लोन नहीं बनाना, क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं। ऐड पे क्लिक कर दीजिए। चलिए डन, टू डिफरेंट सर्विसेज, टू डिफरेंट होस्ट रेडी। अब आपने क्या करना है, ट्रैफिक अपने आप नहीं डिवाइड होगा, यू नीड टू डिवाइड द ट्रैफिक। 50% इसको दे देते हैं, पहले वाले को दे देते हैं, एंड इन दिस केस जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव बटन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, विच इज क्लास ऐप, और दूसरा हमने बनाया क्लास ऐप से एसोसिएटेड हुए एक एजर एप्लीकेशन सर्विसेज, इसका पेज ही अलग आएगा, और नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पेज टू होस्ट योर वेबसाइट। नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि आपने इस पर डेटा अपलोड नहीं किया। इज इट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन सर सो फार, बट मोस्टली क्या हमें क्वेश्चंस जो आएंगे, क्या हमें ऐसा बोलेंगे कि आप इसे वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करेंगे, और वुड इट बी जस्ट लाइक MCQ बेस्ड क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस कैसे होंगे इस पे जाएंगे? अगर हम बात करें जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन होते हैं, Azure, AWS, Google क्लाउड, सभी आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की जो लिमिट्स होती है, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेट आपको मिला है एग्जाम के लिए। फिर भी आपको ये प्रिपेयर करके चलना है 48 to 65, ठीक है।
48 क्वेश्चन से लेकर के 65 क्वेश्चंस के बीच में आपको मींस फाइनल एग्जाम में मिल सकते हैं। डन। got it. एंड वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज कि किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, वो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। Right. क्लियर? तो ये हो गया अपने पास वेब एप्लीकेशन सर्विसेज की इंफॉर्मेशन। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अभी तक यहाँ पे? No question, sir. Cool. So can we proceed for next topic? Yes, sir. Okay, so हम यहाँ पे okay, let me check the content. बैकअप हमने देख लिया, कस्टम डोमेन देख लिया, ऐप सर्विसेज में दोनों तरीके देख लिए, स्केलिंग देख ली हमने, डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स देख ली। अगला जो ऑप्शन है ना, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग, ठीक है? और सही है, इसके बाद फिर हम अपना एडी कंप्लीट करेंगे। एडी के बाद फिर लास्ट कंप्लीट। तो कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग, तो आई होप कि आपको जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में ठीक ठाक आइडिया होता है, राइट? हाँ सर, थोड़ा बेसिक्स है। अबाउट द नेटवर्किंग इन केस ऑफ AG104 काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिया है एज्यूर ने। अगर हम कंपेयर करें अपने AG303 से, तो इसका जो AG104 की केस में नेटवर्किंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है मतलब कि डिफिकल्ट है या ज्यादा पार्ट दिया है क्या? मैं समझा स्ट्रॉन्ग नहीं। इन द सेंस कि मींस वर्थेड है। क्या है? वर्थेड है, वर्थ जिसको मतलब सीख करके हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ठीक से कर ओके ओके ओके, गॉट इट। और सर शायद इसी का सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का ही है, नेटवर्किंग सकते। का। नेटवर्किंग हाँ 25 से 30%। हम्म, Okay, so let's try to understand about the topics that we need to cover. No, no, not topics. Just need to know about the prerequisites. ठीक है ना? हमें क्या क्या prerequisites इसमें करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। क्या क्या सर्विसेज हमें इसमें पता होनी चाहिए। In case of networking, I hope you all of you know about the topics that we need to cover. सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। अबाउट IP एड्रेस, विच इज रियली एंड बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप यू नो अबाउट इट। और यस आईपी सर। में क्लास के बारे में बात करेंगे, वर्जन के बारे में बात करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक हमें कवर करना है अपने इस केस में। सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो हमें पता होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें अबाउट रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। तीसरा हो जाएगा CIDR कैलकुलेशन एंड सबनेट्स। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें मैनेज करनी है। इज इट ओके? यस सर। तो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट ये जो टॉपिक्स है इसमें कितना कंफर्टेबल है। जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द क्लासेस, कितनी क्लासेस होती हैं आईपी की? सर 3 होती है क्लासेस। हम्म, और आई थिंक मे बी एक सेकंड, 0 से 126, 127 टू 191, 192 से 220। आई थिंक देयर 5 क्लासेस आईपी एड्रेस। टोटल 5 क्लासेस हैं।
5 ठीक है, classes, हाँ yes sir. 5 क्लासेस हैं अभी। और इस केस में क्या है, 3 क्लासेस जो है वो हमारे नॉर्मल नेटवर्किंग के लिए, 2 क्लासेस जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और फ्यूचर के लिए रिजर्व बचा के रखा गया है उनको। हाँ, जिसमें से शायद 3 ही यूज होती है ना, मतलब मेन तो 3 ही क्लास यूज होती है ना. हम्म। हाँ, अपने इन्वायरमेंट के लिए मैं, मेरे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए 3 है। बाकी की जो आईपी एड्रेस क्लास है ना, एक तो है मल्टीकास्टिंग के लिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह रहती है, लाइव लाइव डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे रेडियो चैनल वगैरह हो गए ना, इनके लिए यस यस. ये। और क्लास ई जो होता है वो एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर और उस सब के लिए. एग्जैक्टली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हम्म. चलो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट रेंज, अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज. सर मेरे को ये रेंज पता है कि 0 से 126 क्लास ए, फिर बी, फिर सी, एंड देन डी, एंड देन ई. रेंज क्या होती है ना, रेंज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज विदाउट रेंज आप सीआईडीआर का कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इफ यू, रेंज, रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। हाँ तो वो तो हर क्लास के लिए अलग रेंज होगी पब्लिक और प्राइवेट की ना. चलो मैं बताता हूँ आपको अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट रेंज। ठीक है, तो प्राइवेट रेंज क्या होती है, प्राइवेट आईपी रेंज की बात करें तो हम, जिसमें से ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, क्योंकि तीन ही को हम काउंट करेंगे, और इसकी जो रेंज स्टार्टिंग होती है वो होती है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255। इज इट ओके? क्लास ए। बी की बात करें ये सब. तो स्टार्टेड फ्रॉम 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। अगर हम सी क्लास की बात करें तो आपका सी क्लास जाएगा 192 से 168.1.0.0 से लेकर के 192.168.255.255. Is it correct? This is the private IP address range. गॉट इट. It means that जो बाकी के आईपी एड्रेस से स्टार्ट होगी, मान लीजिए 171 से किसी आईपी की स्टार्टिंग होती है, 11 से किसी की स्टार्टिंग होती है, 9 से स्टार्टिंग होती है, 191 से स्टार्टिंग होती है, 193 से स्टार्टिंग होती है, तो आई थिंक ये सभी जो है ना आपके पब्लिक में काउंट होंगी। यस सर. एंड पब्लिक आईपी एड्रेस को हम अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज applicable only and only for ISP, internet. सर्विस प्रोवाइडर्स. We are not authorized to access any, we are not authorized to configure public IP address range in our computer, in our local machine, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर 10 से कहीं स्टार्टिंग में आईपी दिख रही है, 172 से दिखाई पड़ रही है या 192 से दिखाई पड़ रही है, तो आप एक सेकंड के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा दिस वन इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस। इससे हट करके कहीं कोई आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग होती है, आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग होती है, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट कि वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। पब्लिक आईपी NV5 एड्रेस यूजर. है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस वर्ल्ड वाइड एक होती है, पूरी दुनिया में एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस होगी। अगर आपके सिस्टम में कोई पब्लिक आईपी एड्रेस आ रही है तो वर्ल्ड वाइड कहीं दूसरे दूसरे कंप्यूटर में नहीं मिलेगी। करेक्ट? यस सर. प्राइवेट आईपी एड्रेस को ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट टू क्लाइंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने 192 की आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रखी है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 192 की आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? यस सर.
CIDR कैलकुलेशन, वैसे तो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर ये नहीं बोलता कि आप CIDR कैलकुलेशन आपको मैनुअली आना चाहिए, क्योंकि वो सभी कैलकुलेटर मेथड अपने पास रखते हैं। बट अगर आपको कोई कोटेशन बनानी है तो उस केस में आपको पेपर पेन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। CIDR है क्या? CIDR है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपके पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे करके कुछ आईपी एड्रेस दी जाती है, /25/24/16/10/8, ऐसे करके आईपी एड्रेस मिल जाती है। इसको बोला जाता है CIDR। तो ये हाफ इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज सबनेट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैलकुलेट करो। दूसरा, अबाउट यूजेबल आईपी, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और तीसरा जो आइटम रहता है वो रहता है सबनेट्स का, कि इसमें कितने नंबर ऑफ सबनेट्स निकलेंगे, या आप बोल सकते हो सबनेट्स, या आप बोल सकते हैं आप ब्लॉक साइज, कि एक ब्लॉक कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप बना पाओगे और उनका साइज क्या होगा। फाइन, Got it. Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज द प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एज्योर सर्विसेज, एज्योर नेटवर्किंग। एंड नाउ ये सब कंप्लीट करने के बाद अब आता है हमारे पास एज्योर नेटवर्क सेटअप, हाउ यू कैन establish your on Azure network। तो Azure नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इसमें वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं Azure VNet, Azure Virtual Network, which is categorized in two different parts. One is default and second one is create your own network। जब भी आप डिफॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, डिफॉल्ट वीनेट के केस में एज्यूर अपनी तरफ से एक रेंज प्रोवाइड कर देता है 10.0.0.0/16, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके पास आईपी एड्रेस होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप अपना खुद का एड्रेस तैयार करते हैं तो खुद के एड्रेस में आप अपने हिसाब से आईपी रखेंगे। 192 रखना है, 168.0./25। अब दोनों में गैप क्या है? गैप ये है बेसिकली कि इस केस में आपको जो आईपी एड्रेस रेंज मिलेगी ना, वो 65,536 आईपी एड्रेस, जिसका हमें यूज भी नहीं है। इतना आईपी एड्रेस हम कुछ नहीं कर सकते ना, नॉट रिक्वायर्ड। और इस केस में जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगी जस्ट 128 आईपी एड्रेस, क्योंकि हमने सिस्टम ही 100 जोड़ने हैं, सिस्टम तो ये कम जोड़ने। हाँ, सर ये कैसे मिली आप? I'll Okay. guide you। तो इसमें 128 आईपी एड्रेस हमें मिलती है, और इसमें अगर आपने /16 लगा रखा है तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है वो अप्रोक्सीमेटली 65,536 आईपी एड्रेस मिलती है, विच इज ह्यूज। और इसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लेट मी Yes, sir. default VNet, default VNet range is started from 10.0.0.0/16। ये डिफॉल्ट है, ये तो हमें मिलेगा। create by on 192.168.1.0/25, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नंबर लास्ट में रखना चाहते हैं। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। एंड second important part, in case of default VNet, if you calculate the value of /16, 65,536 ये आपको आईपी मिलेगी, और इसका आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। /25 में अभी आप जब कैलकुलेटेड मैसेज
सीख जाएंगे ना, तो आप लास्ट वाला डिजिट देखेंगे और बता देंगे विद इन सेकेंड कि हाँ आप अपने इस एड्रेस के थ्रू इतनी आईपी एड्रेस का स्पेस आपको मिल रहा है, मतलब इतनी आईपी एड्रेस आप अटैच कर सकते हैं। फाइन। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। ना बात होती है कैलकुलेशन मेथड की, तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। IPv4 में एक एग्जांपल लेते हैं 192.168.1.0/25 का। दिस इज द वैल्यू ऑफ CIDR। तो ये हमें इसको पूरे कैलकुलेशन, को सर इसको पूरे को सीआईडीआर बोलते हैं या 25 जो लास्ट में उसको सीआईडीआर बोलते हैं? जो लास्ट 25 है ना उसको CIDR बोला जाता उसको सीआईडीआर, ओके या। है। पूरे को बोला जाता है एड्रेस स्पेस। ओके ठीक है। ठीक है नाउ सर। टॉक अबाउट द कैलकुलेशन मेथड। सो इन केस ऑफ कैलकुलेशन मेथड /25 और जो IPv4 है ना, क्योंकि ये 192 से है तो IPv4 होगा। IPv वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ IP मिलती है वो 32 बिट्स की होती है, 32 बिट्स। ठीक है, 32 बिट्स की टोटल एड्रेस स्पेस होता है इसमें। और ये जो लास्ट है ना, इसका मतलब है ये आपने इतना इस्तेमाल कर लिया, 32 बिट में से आपने 25 बिट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग बिट बचे हैं उसमें आप वर्चुअल मशीन ऐड कर पाओगे। बाइनरी समझते हैं ना आप? 0101, यस सर। 0 तो 32 बिट का मतलब ये 8 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 8 3 3 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 में ये डिवाइड किया गया है। करेक्ट। यस यस सर। तो इन आवर केस वी हैव अ एड्रेस स्पेस, CIDR वैल्यू इज /25। बहुत ही आसान है। 25 आपने यूज कर लिया है, तो इसको कैलकुलेट सर कैसे करोगे? हेलो। यस सर। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, 25 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉक्स में 8 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 2 बॉक्स 16। नंबर 16, 17 18 19 20 24। 21 23 24। 24, तीन तीन ब्लॉक में ये फिक्स हो गया, मतलब कोई भी स्पेस नहीं, ये यूटिलाइज हो गया। 25 है तो अगले लास्ट वाले बॉक्स में एक जाएगा, क्योंकि ये 24 एक 25 0 बाकी कर दो, सिंपल सा। 3 2 5 1 सर 6 7, 3 3 6 7 8, टोटल हो गए 8। हाँ। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो इन सभी को, तो ये आएगा आपका 255, ये भी आएगा आपका 255, ये भी आएगा आपका 255। करेक्ट। यस सर। तो अब ये कैलकुलेट करना है आपको। तो इसमें कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो ये जीरो है ना, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7। तो बाकी तो जीरो हो गए, इनको तो कैलकुलेट ही नहीं करना है हमें। लास्ट वाला कैलकुलेट कर, 2⁻7 का मतलब है 7 टाइम आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7, 4 8 16 तो 32 128। 128। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमने सबनेट कैलकुलेट कर दिया, हमारा सबनेट हमें मिल गया। और सबनेट में 128 आया, तो आप 256 को ना 128 से माइनस कर दो, तो और ये 128 आईपी चाहिए। 128 IP आ जाएगा। ये क्लियर। 256 कहाँ से आएगा? 0 to 255 इक्वल टू 256। गॉट इट। गॉट इट दिस सर। इज द वे टू कैलकुलेट, अगर जरूरत पड़ती है तो। अदरवाइज एज्योर जो है खुद वो डिफॉल्ट कैलकुलेटर देता है, जब आप ये वैल्यू रखेंगे ना वो अपने आप कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देगा। सर ऐसा होता है ना कि हम जब पता है वीनेट सिलेक्ट करते हैं तो हम उसमें आईपी रेंज डालते हैं कि भाई 192 से 168
.0 ये रेंज हो गया हमारा। फिर हम CIDR भी डालते हैं ना कि 20 मतलब 10 CIDR या 20 CIDR या 30 CIDR, देन उसके बीच में आपको अपना सबनेट चूज करना होता है ना, करेक्ट रेंज के बीच में। करेक्ट। ओके ओके डन। तो ये कैलकुलेशन मेथड है, मतलब इस पे ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है हमें, अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन मेथड है ना, ये फिर हम भूल जाते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई ओके क्वेश्चन, डाउट? नो क्वेश्चन सर, ये थोड़ा एक बार खुद से देखना पड़ेगा नेटवर्किंग का, सबनेटिंग और नहीं, IP आप रेंजेस के का। आप इसमें ये जो टॉपिक है ना, दिस वन, ये टॉपिक आप अपनी तरफ से देख लो, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हम नेटवर्किंग में VPN वगैरह बना पाएंगे। मेक सेंस। क्लियर ना? तो यस ये आप देख, और कल हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? ओके सर। देखिए, टुडे इज मंडे, और मुझे एक डेली हेडल ज्वाइन करना है 15 मिनट में। नो वो ऐसा तो ये शेड्यूल में नेटवर्किंग। पूरे, है ना? एंड नो वरी ठीक अबाउट है द कंटेंट, आई ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर कंटेंट। हम लोग ट्रैक पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप कि सारी चीजें समझ में भी आ रही होगी। नहीं आ रही आ बस रही आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो विल ट्राई टू फिनिश इंटायर कंटेंट बिफोर 15 अप्रैल, मे बी 10 तारीख तक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। नहीं नहीं कोई नहीं सर, आराम से करेंगे, मतलब सब समझ आए ऐसे करेंगे, कोई वो नहीं है। क्लियर क्लियर। तो वो समझ में सारी चीजें तभी आएगी जब आप अपनी तरफ से उस पर प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करोगे, है ना? यस सर। आप ये सर आज का प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना। I'll show। चलो ठीक है कल सर, मिलते थैंक यू। हैं, टाइमिंग अपडेट ठीक कर देंगे। अगर मेरी शिफ्ट कोई चेंजेस ना आया तो यही ठीक है रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं आया तो यही रखेंगे पूरे हफ्ते के लिए। अगर कुछ चेंजेस होता है तो कल अपडेट। ठीक है सर, ओके। टेक ठीक है सर, केयर। थैंक यू। थैंक यू।